Hello friends, in this class we are going to study how to represent a set. There are two ways which is given to represent a set. The first one is known to be the roster form or tabular form, and the second one is known to be the set builder form. The roster form of representing a set means you have to list all the elements of the set within the curly bracket and separated by comma. That means, as we are discussing in our previous class how to write a set, in the same manner we have to write in the roster form. Means the way we have discussed earlier is the roster form, in which we have to list each element within curly brackets and separated by a comma. So this is what roster form. The set builder form, it is a certain new thing, and it is a logical explanation of the set. Now, as compared with the roster form, set builder form is somewhat tricky. Now, by using an example, we are going to study how to write the set builder form and the roster form. Let us take an example of set A, which is a set of even natural numbers less than 20. Means, here in the example, it is a set of even natural numbers. Now, you all know what are natural numbers, as well as you all know what are the even natural numbers. Now, the natural numbers which are even and that are also less than 20. Remember this. This natural number must be less than 20. So, less than 20 natural numbers and even. So, आप write down कर सकते हो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. These are the simple natural numbers जो इवन है और 20 से कम है. ये आपको पता है. जब हम इसको लिस्ट डाउन करेंगे तो लिस्टिंग डाउन विद इन कर्ली ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमा, और जो बेसिक रूल्स है कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ऑर्डर का मैटर नहीं करता है. आपका मन चले तो अप एंड डाउन ऑर्डर में लिखो, इससे कोई मैटर नहीं करता है. दैट डजंट मैटर ओवर हियर. सो द रोस्टर फॉर्म स्टेट लिस्टिंग ऑफ द एलिमेंट. इन द सेट आपको एलिमेंट को लिस्ट डाउन करना है. आपने लिस्ट डाउन किया. दिस इज व्हाट द रोस्टर फॉर्म. नाउ व्हेन वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, द सिंपलेस्ट मैनर इज टू राइट द क्वेश्चन एज इट इज इन द विद इन द कर्ली ब्रैकेट इज द सेट बिल्डर फॉर्म. अगर किसी को प्रॉब्लम होती है लॉजिकल एक्सप्लेनेशन में, तो बेस्ट वे यही है कि वो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को एज इट इज उतार दे. एज इट इज क्वेश्चन को उतार दे विथ द this writing at semicolon x. What does it mean? How to read this? In a set builder form, we have to access the set in the logical manner. In that case, what we have written, हम उसको read करते हैं. A is a set consisting an element x. This is how we have to read. A is the set that consists an element x. Now, what is x? Such that this semicolon is read as such that what is x? X is set of even natural number less than 20. This is how we have to read. And on reading this, we get the knowledge that set consists of which element? This set consists of even natural number less than 20. This is the way or logical way to write it or express it. But there are many different ways, and the answer may be very differently possible. It's not necessary कि आपके बुक का आंसर आप टैली करे जो आपने लिखा हो. ये डिपेंड करता है कि आप कितना लॉजिकल जा सकते हो, और सारे आंसर पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ तक यही कहा है कि लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए. तो लॉजिक तो हमारे क्रिएशन के ऊपर होते हैं, हमारी क्रिएटिविटी के ऊपर होते हैं, एज मच एज वी कैन. सो उस बेसिस पर हमने भी क्रिएशन किया, यहाँ पे थोड़ा सा क्रिएटिविटी अप्लाई की अपने लेवल से, और उसको अलग अलग तरीके से लिखा. मतलब इसी क्वेश्चन का एक तो एक्सप्लेनेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में हमने ये बता दिया. फर्दर मोर ओवर दिस, इसी क्वेश्चन को हम और कैसे लिख सकते हैं. तो देखो, ए हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया. ए इज अ सेट कंटेनिंग एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 into k. x की वैल्यू क्या है? 2k के इक्वल है. अब k क्या है? यहाँ तो k बताना पड़ेगा ना. ये तो हमने बताया कि x जो है वो a का एलिमेंट है, और x क्या है? x है 2k. अब x k के टर्म्स में डिफाइन किया गया है. नाउ वी शुड नो कि व्हाट इज k. Here it is written for all values. This sign means for all value of. हम लिख देते हैं ताकि आपको ये चीज याद रहे कि इस साइन का मतलब क्या होता है. इस साइन का मतलब होता है for all values of. For all values of.
ये साइन होता है, ये v बना है, v को काट दिया हमने, तो ये आ गया फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ। तो फिर से हम पढ़ रहे हैं, a क्या डिफाइन कर रहा है, a is a set containing an element x where x is equal to 2k. So x is expressed in terms of k and k is what? K is less than 10. Okay, ठीक है, less than 10. But what is k? कि हम 10 से कम ले k को. K belongs to natural number. K is an element of natural number. Remember this sign. पिछली क्लास में हम लोग ने इस चीज को डिस्कस किया था, पढ़ा था, समझा था, जाना था कि ये क्या होता है। ये बता रहा है कि k क्या है, k एक एलिमेंट है नेचुरल नंबर का। और नेचुरल नंबर कहां तक, वो भी इसने स्पेसिफाई कर दिया कि नेचुरल नंबर लेस देन 10 तक। मीन्स के एक नेचुरल नंबर है और के की वैल्यू 10 से छोटी है। ध्यान देना, 10 से छोटी है, 10 से छोटी है। मीन्स के कितना हो गया, के की वैल्यू आपकी आ जाएगी k इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये k की वैल्यू आएगी। ये सेट नहीं लिखा, आगे मैं सेट के फॉर्म में नहीं लिखा, हम सिर्फ k एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। दिस इज ओनली द वैल्यू ऑफ k। सो k इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 10। हमको a थोड़ी निकालना है, हमको तो x निकालना है। हमारा आंसर तो x है। a इज अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट x। So what is x? x is 2 into k. So in इस वैल्यू ऑफ k में हम 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा, 3 को किया, 6 आएगा, 4 को किया, 8 आएगा। लाइकवाइज ये वापस वही एलिमेंट आ जाएंगे। मीन्स इन एलिमेंट को लिखने का ये भी एक लॉजिकल मेथड है आपके पास। इसको हमने और भी तरीके से एक्सप्रेस किया। फिर हमने लिखा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, a इज अ सेट कंटेनिंग 2k। अब हमने x लिखा ही नहीं, हमने सीधे लिख दिया कि x a क्या है, a की वैल्यू 2k है। k क्या है, फिर वही चीज, k 10 से कम है और k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में, सेम चीज। तो यहाँ पे ये जो k की वैल्यू आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दैट बिकम्स आवर एलिमेंट ऑफ a। नाउ फर्दर हमने लिखा, एक और तरीके से लिखा हमने क्या लिखा कि a is a set containing an element x such that x is equal to 2n। जैसे 2k लिख रहे थे, 2n लिखा। अब n क्या है, n is a natural number, ठीक है, and n is less than equal to 9। अब देखो हमने यहाँ पे ऐसे लिखा, क्या फर्क पड़ा, less than and equal to 9, मतलब आया तो वही कि n की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेस देन 10 था, अब हमने लिख दिया लेस देन इक्वल टू 9। देयर आर मेनी सच लॉजिक्स जो आप इंक्लूड कर सकते हो, डाल सकते हो और लॉजिकल से लॉजिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। दिस इज हाउ वी कैन राइट सेट बिल्डर फॉर्म। सो द आंसर ऑफ वन स्टूडेंट मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट। दैट डिपेंड्स ऑन द लॉजिक कि वो कौन से लॉजिक से, कितने लॉजिक से और किस तरह का लॉजिकल एक्सप्रेशन वहां पे प्रोवाइड कर रहा है। सो इन जनरल, ऑल टू ऑल, हम ये बोल सकते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म, the set builder form is more typical comparatively to the roster form. Roster form is the easiest way to express the set, but you should know how to write the set builder form. It is very important to know, and it is the basic. That's why we are having the chapter set. That is a very important chapter for the study of 11th and 12th of any stream. आप मैथमेटिक्स किसी भी लेवल के लिए पढ़ो, साइंस के लिए पढ़ो, आप कॉमर्स के लिए पढ़ो या ह्यूमैनिटीज के लिए पढ़ो, मैथ आप किसी भी लेवल में पढ़ो, यू नीड द एप्लीकेशन ऑफ सेट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये आपके लॉजिकल रीजनिंग को, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। एंड दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जहाँ पे आपके लॉजिक्स निकल के आएंगे, आपकी क्रिएटिविटी सामने आएगी। So be creative as much as you can and have more logical explanation over there. But there is a cheating. Cheating what? If you do not have that much of logic, you can write the statement as it is in the question by writing like this, you get the full mark. So that is a type of cheat, but instead for learning purpose, for understanding purpose, you must use the logic as much as you can and try to practice about that logic from various books, and also you can consult from me also. So this is the different way of a single question to write in the set builder form. हमने यहाँ पे एक और क्वेश्चन को कंसिडर किया है। हमने लिया B एक सेट है जो बता रहा है कि सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स।
अब यहाँ पे इंग्लिश का हमने थोड़ा सा लिया कि वर्ड मैथमेटिक्स के जो लेटर्स हैं वो सेट्स में कैसे एक्सप्रेस होंगे। सिमिलर एग्जांपल हम लोग ने लास्ट क्लास में भी कंसीडर किया था। सो यहाँ पे मैथमेटिक्स को अगर हम सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे रोस्टर फॉर्म में, तो जस्ट वी हैव टू लिस्ट द एलिमेंट्स एंड दैट एलिमेंट that should not be repeated, they are separated by commas, ठीक है ना, और विद इन द कर्ली ब्रैकेट, और किसी भी ऑर्डर में एज यू लाइक। ठीक, तो हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे और जो जो लेटर्स रिपीट कर रहे हैं उसको फिर से नहीं लिखेंगे। जैसे एम 2 बार रिपीट कर रहा है हम 1 बार लिखेंगे, टी 2 बार रिपीट कर रहा है हम 1 बार लिखेंगे, ए 2 बार रिपीट कर रहा है हम 1 बार लिखेंगे। लाइकवाइज जितने भी लेटर्स रिपीटेशन में हैं हम उनको सिंगल टाइम लिखेंगे और सारे लेटर्स को राइट डाउन करेंगे जितने भी डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं और सेपरेटेड बाय कॉमा विद इन कर्ली ब्रैकेट। दिस इज द रोस्टर फॉर्म। There is no logical methods, too much logical methods are there except to write in different English language, different ways in the English. That is the different way जो यहाँ पे possible हो सकता है सेट बिल्डर मेथड में। कोई अदर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं आ सकता इसके लिए, तो हमने सिंपल में राइट डाउन कर दिया है B is a set of elements containing X, where X is a set of letters in the word mathematics. The same जो क्वेश्चन में है वही हमने यहाँ पे भी लिख दिया है, बट अगर न्यूमेरिकली है तो आप उसको थोड़ा सा लॉजिक बना के सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन टेकअप करेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे और तरीके से सेट बिल्डर को एक्सप्रेस किया जा सकता है। दिस क्लास इज जस्ट टू शो यू और टू गिव यू द नॉलेज अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट एंड इन फर्दर क्लासेस लेटर ऑन हम लोग और एग्जांपल्स और क्वेश्चंस लेंगे जिससे कि हम आपको और समझा सके कि कितने लॉजिकल वे में हम किसी क्वेश्चन को लिख सकते हैं। इफ यू हैव क्वेरीज यू कैन कॉल मी, हैव क्वेरीज ऑन योर कमेंट सेक्शन सो दैट कि हम उसको सॉर्ट आउट कर सकें और आपको एक्सप्लेन कर सकें। थैंक यू।